So I think request everybody to switch on their cameras and we'll start the session. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Gautam Chaturvedi and I welcome you to this very, very important session being co-curated by Cinta and Pine Tree Pictures. आज का जो टॉपिक है वो हम सब की निजी जिंदगियों से बहुत जुड़ा हुआ है। हम सब जो एक्टर कम्युनिटी हैं, हम सब एक नई विपदा को फेस कर रहे हैं, एक नई प्रॉब्लम, नई तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसको हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन वो एक रियलिटी है, वो हमारे सामने है। पिछले 2-2.5 महीने से हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने परिवारों से शायद दूर हैं, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकते, अपने प्रियजनों से नहीं मिल सकते। लेकिन क्या इस विपदा में, क्या इस प्रॉब्लम में कोई नई अपॉर्चुनिटीज हैं? इसे किस तरह से हैंडल किया जा सकता है? तो आज का जो हमारा सेशन है वो मैनेजिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, माइंड एंड बॉडी, इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ कोविड-19। हमारी मॉडरेटर करुणा जी हैं, करुणा वर्मा, एक बहुत ही जानी मानी अदाकारा हैं, एंकर हैं, टेलीविजन एंकर हैं और ट्रेन्ड लाइफ कोच हैं, योगा टीचर हैं और बहुत सारी चीजें करती हैं। तो करुणा जी, ओवर टू यू नाउ। आदाब। करुणा अजीब जी है जी, जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। आप a very warm welcome to all of you and नमस्कार and आदाब। आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। I know Eid has come at a very unfortunate time, but nevertheless आप सभी को ईद की मुबारक। हम सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप सभी से, stay home, stay safe and above all stay positive. Please stay positive. So I'll not waste much time. गौतम ने काफी चीजें बता ही दी हैं आज के वेबिनार को लेकर। I'll start by introducing our panelists today. So the very first panelist we have with us on board is Dr. Anjali Chhabadiya. She's a very famous psychiatrist, psychotherapist. She is the founder of Mind Temple Institute. She is a TEDx speaker. She is an author. She has written a very famous book about suicides. And above all, she's a noble human being, a very fine human being that I have met in my life. Then after that, we have Mr. Amit Bahal. Everybody knows him. He's a very famous actor, a very prominent name in our industry. I have also got an honor to work with him. Not just that, he's the honorary senior joint secretary and chairperson of Cinta. He is a member of the governing council of MESC, which is Media and Entertainment Skill Council. He's a special advisor to WICA and a visiting professor at many institutes, many prestigious institutes rather. Welcome, Mr. Amit. आपका बहुत बहुत स्वागत है. उसके बाद है Miss Payal Kapoor Nair. She's also a colleague. She's also a very famous actor. We recently saw her in a movie called Chapak. And with that, she's Cinta's executive committee member and member of ICC, which is Internal Care Committee of Cinta, handling sexual harassment cases reported by our community, our members. Welcome to all of you. I will start with the core of this webinar, that why we have gathered all of us, like in fact all our community people. Why do we want to talk today? The major reason of us to really gather today here for this webinar is the impact of COVID, as Gautam also introduced this whole webinar in his own ways. किस तरह से इस COVID-19 ने हमारी जिंदगी को झंझोड़ दिया है, किस तरह से हमारा मेंटल बैलेंस, हमारे सर्वाइवल इश्यूज, ये सब सरफेस पर आ गए हैं। कोविड-19 अपने आप में एक बैटल है जिसे हम लड़ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज कोविड-19 की वजह से हम फेस कर रहे हैं। मेंटल इश्यूज, सर्वाइवल इश्यूज, इन सभी के जवाब, इन सभी पे एनालिसिस करेंगे हम with the help of our panelists. I'll quickly start with the first question to Dr. Anjali. Doctor, you know, we're all locked down in our houses for almost more than 2 months now. And definitely we've all gone through a major mental change. How do you suggest, how do you think we should maintain our mental balance? That's the first and the foremost basic question.
Anjali ji, Doctor, you have to. we Sorry, can't hear sorry. you. Yeah. I thought you were going to unmute me. Sorry. No, Okay. uh, Yeah, I did it. yeah, Am I okay? Am I audible now? absolutely audible. Absolutely. Yeah. Okay. So first of all, see, I'm not an actor, no, so I don't know how to do all these things. But but in the last 2 months, we've all learned even to do these Zoom videos, etc. You know, I was someone who didn't know technology at all. So to come back to the question, I think the world has changed for everybody today, you know, and what we have been going through is a new situation. Now, whenever there is a new situation, what we need to do is to adjust to it. And we've all been trying in our own ways. Of course, still, I think every morning when I talk to people, whether it is doctors, friends, actors, businessmen, 40% of them are saying कि हमें ठीक से नींद नहीं आ रही है. Okay, 40%. That means 4 out of 10 people are having sleep disturbances, including me. This morning I woke up at 3 a.m., right? And then I luckily could fall back to sleep at 5 o'clock. But क्या होता है कि जब नींद नहीं आती है, एक चीज को हमें ध्यान रखना है. अगर मैं बोलूंगी कि ओ मुझे नींद नहीं आई, मुझे दिन में सोना चाहिए, उसमें मैं गलती करूंगी. तो अपना जो रूटीन हमें बनाए रखना है, कुछ भी हो जाए, हमारी जो एक्सरसाइज है, खाना पीना है, प्लस हमारा जो नींद की रूटीन है. 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, चौथे दिन नींद आ जाएगी. जब अगर हमें नींद नहीं आती है, प्लीज नींद की दवाइयाँ नहीं लीजिए और अल्कोहल मत यूज करिए, क्योंकि ये चीज से अगर हम डिप्रेशन में नहीं है अभी और डिप्रेशन में चले जाएंगे. सो एंजाइटी इज वेरी वेरी नॉर्मल एट दिस टाइम. तो जब आपको बहुत एंजाइटी हो रही है तो एक बात पूछिए अपने आप से कि मैं इसमें अकेला हूँ. आपको पता चलेगा नहीं, मैं इसमें अकेला नहीं हूँ. जब हम अपने घर में सुबह को उठते हैं, एक चीज मैं शुरू से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जब मैं उठती हूँ मैं बोलती हूँ थैंक गॉड कि मैं अपने घर में उठी हूँ, किसी हॉस्पिटल में नहीं उठी हूँ. सो दैट मेक्स मी फील गुड. दूसरी बात मैं सोचती हूँ कि यस आई एम एट होम बट आई कुड बी अ हेल्थ केयर वर्कर. लकीली आई एम 55 अबव 55. तो हम 55 के ऊपर वालों को बोला है कि आप लोग फील्ड में मत उतरिए, यू नो. तो मैं बोलती हूँ चलो मैं अपने घर में हूँ, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं वो बेचारे फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो उससे भी मुझे एक थोड़ा सा सुकून मिलता है. तीसरी बात मैं अपने आप को कहती हूँ कि हाँ मैं क्वारंटाइन में हूँ कि नहीं, मैं क्वारंटाइन में नहीं हूँ, तो भी मुझे और सुकून मिलता है. फिर जैसे आप उठते हैं, उठ के इमीडिएटली नेक्स्ट 15 मिनट में अपने बेड से उठ जाइए. सोचिए मत कि नहीं अभी थोड़ा और सोना है, क्योंकि जो सुबह होती है वो वर्स्ट टाइम होता है. सब विचार आते हैं, जब लोन्स सामने आएंगे, आपके जो करियर के प्रॉब्लम सामने आएंगे, फैमिली के प्रॉब्लम सामने आएंगे, बच्चे की याद आएगी, पेरेंट्स की याद आएगी. तब आपको उठ के अपने रूटीन में जाना है. और रोज आप दिन में आपको एक काम करना है कि जो आपसे जो कम है उनसे सोचना है, उनके बारे में सोचना है. ओके, तो मैं जब उठती हूँ, मैं सुबह सुबह पहले अपने सब जो डॉक्टर कलीग्स हैं उनसे बात करना शुरू कर देती हूँ कि उनसे पूछती हूँ कि आपका दिन कैसे चल रहा है. जब मुझे उनके प्रॉब्लम पता चल जाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ. फिर आपको ऑफकोर्स जो हमारा काम है उसमें भी थोड़ा सा समय बिताना है. जो भी आपका काम है, मेरे सेशंस ऑनलाइन होते हैं, तो मैं ऑनलाइन अपने सेशंस लेती हूँ. ओके, वो हो जाता है. फिर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ. तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये चीज़, जो नई चीज़ हमारे ज़िंदगी में आई है, इट इज़ yes also giving us lots and lots of new opportunities. Okay, मतलब ये चीज हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, मगर एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है. क्योंकि इस समय करीब, जैसे मैं आज आपके साथ सेमिनार कर रही हूँ, मैं रोज ऐसे सेमिनार करती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने दुबई में बात की है, अफ्रीका में बात किया, अमेरिका में बात किया, लंदन में बात की, तो कम से कम एटलीस्ट 5-6 लाख लोगों के साथ तो मेरा कांटेक्ट हो गया है. तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हुआ, राइट? तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चाहता है कि हम अपना काम घर से करें. सो और आप लोग सबसे क्रिएटिव लोग हैं. अभी आपको सोचना है कि आपको अपने क्रिएटिविटी को कहाँ से कहाँ तक लाना है. आप में वो कौन सा गुण है जो किसी और में नहीं है. और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि
शेयर योर प्रॉब्लम्स. आई एम सो हैप्पी कि ये लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आई थिंक अ फ्यू इयर्स अगो तो ऐसी इनिशिएटिव्स थे ही नहीं. जो सफर करते थे अकेले सफर करते हैं. अभी ये सब इनिशिएटिव्स हैं, और ये सब इनिशिएटिव्स में आपका काम है कि आपको जो प्रॉब्लम है आप इनसे शेयर करिए, क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं हैं. अगर आपको पैसों की कमी है या हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, आप फोन उठा के या ईमेल करके इनसे बात करिए और बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है. आई विल जस्ट से वन मोर थिंग एंड देन यू कैन गो ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हम सब मिस्टर बच्चन को जानते हैं, और हम एक ही चीज, एक सबसे बेहतर चीज उनसे मैंने जो सीखी है कि जब उन्हें प्रॉब्लम था 2008 में, उन्होंने क्या किया. उन्होंने सोचा नहीं कि मैं मिस्टर बच्चन हूँ, मैं क्यों किसी के पास जाऊं काम के लिए. वो गए, वो हर एक बंदे के पास गए और उन्होंने कहा मुझे काम चाहिए, आप प्लीज मेरी मदद करिए. अगर वो अपने अगर वो मदद के लिए अगर वो मदद मांग सकते थे तो हम उनसे ज्यादा तो नहीं है. सो आई थिंक लेट्स गो ऑन विद द डिस्कशन. थैंक यू डॉक्टर. मैं आपको इसलिए नहीं रोक पाई बीच में बिकॉज यू वर स्पीकिंग एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू हियर. आपने बहुत बहुत ही मेटिकुलसली, बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरह से हमें रूटीन फॉलो करना है, अपनी नींद नहीं गंवानी है, और किस तरह से वी हैव टू रीच आउट टू पीपल एंड थिंक ऑफ द पीपल हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन अस, जैसा आपने कहा. और लोगों तक पहुंचना पड़ेगा अगर हमें मदद चाहिए. मैं अमित आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी, हमारे एक्टर्स, कुछ लोग तो आप तक पहुंच पा रहे हैं, कुछ लोग शायद नहीं पहुंच पा रहे. आप कैसे, हाउ आर यू रीचिंग आउट टू देम एंड हेल्पिंग देम? किस तरह से आप उनकी मदद कर रहे हैं? करुणा, डॉक्टर अंजलि ने जो कहा, मतलब मैं सिर्फ वहां से ही टेक ऑफ करूंगा, क्योंकि 22 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कर्फ्यू है और हम शाम को जब ताली बजाएंगे या हम साथ में खड़े रहेंगे और कुछ मतलब एक्नॉलेज करेंगे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है या जो कोविड वॉरियर्स हैं इनको, तब ये आभास हो गया था कि ये अब कुछ लंबा जाने वाला है. क्योंकि दुनिया भर में जो समस्याएं हम देख रहे थे, उनके बारे में हम सुन रहे थे न्यूज चैनल्स पे, इंटरनेट पे, अखबारों में, कहीं ना कहीं दिस वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म कि कुछ गड़बड़ होने वाली है. फिल्म इंडस्ट्री 18 मार्च से बंद है. जब सीएम महाराष्ट्र ने सेक्शन 144 लगाया था तो 18 मार्च से सब कुछ बंद है. तो हमारी इंडस्ट्री बाकी की इंडस्ट्री से पहले बंद हो गई. उसके बाद अब समस्या जो हमारे पास आई कि आप फिजिकली बैंक जा नहीं सकते अगर आप पैसे भी निकालना चाहते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आ गया था. और मैं डॉक्टर अंजलि की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इट इज नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग. क्योंकि मुझे लगता है कि सिंटा में रह के पायल या मैं या हमारे बाकी के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, जितने लोगों के साथ हम पिछले 2 महीने में संपर्क कर पाए हैं, या तो इंटरनेट के जरिए या फोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए, आई थिंक मैं इतने लोगों से, हमारे मेंबर्स से वैसे रूबरू हमारी एजीएम में भी नहीं हो पाता. तो क्या हुआ कि जब ये समस्या शुरू हुई तब हमने कहा कि अब पेमेंट्स ज्यादातर एक्टरों के 90 दिन या 120 दिन के बाद आते हैं. किसी को ये आभास नहीं था कि ये होने वाला है. अब हमने कहा कि अभी इसको फंड रेजिंग हमें कुछ करनी चाहिए. अब फंड रेजिंग कैसे करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी 10,000 प्लस की जमात है, सिल्टा के मेंबर्स जो है, आप, मैं, गौतम, पायल, हम सब मेंबर्स हैं. लेकिन हमारे उसमें से करीबन 4,500 से 5,000 की जो एक संख्या है, जिनकी स्थिति डेली वेज वर्कर से भी खराब है, क्योंकि ये टैलेंटेड होने के बावजूद, इनके पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, ये महीने में 4 या 5 दिन काम करते हैं. और इनकी आमदनी वैसे नॉर्मल जब काम चल रहा है तब भी 25,000 रुपए पर मंथ से ऊपर नहीं हो पाती. लेकिन और इनके फोन आने शुरू हो गए, इनके ईमेल्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए. अब क्या करें? तो ये था कि सबसे पहले तो ये है कि डिप्रेशन का सबसे बड़ा, जो डॉक्टर अंजलि इस बात से सहमत होंगी और इनकी एडवाइस भी जानेंगे, कि जब आपकी आर्थिक दिक्कतें शुरू होती है ना, बाकी दिक्कतें तो बाद की बात है, स्ट्रेस, एंजाइटी रिलेटेड टू लैक ऑफ स्लीप या फिर काम नहीं है, वो बात की बात है. अगर थोड़ा सा जेब भरी हो, थोड़ी सी जेब भरी हो, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो, और
ये बहुत हम उनको बताना ये जरूरी था कि आपकी संस्था आपके साथ है। तो हमारा जो जोनल स्ट्रक्चर है, जैसे बंबई शहर को हमने 10 जोन में डिवाइड किया है ज्योग्राफिकल, जैसे मीरा रोड, भयंदर, वसई एक जोन है, अंधेरी के 2 जोन्स हैं। तो इसमें हमने जोनल स्ट्रक्चर को एक्टिवेट किया, क्योंकि हमारे जोनल स्ट्रक्चर में क्या है कि हर कलाकार अपने ज्योग्राफिकल क्षेत्र में 10 दूसरे कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि ये डिप्रेशन का माहौल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो 10 लोगों के साथ एक कलाकार, चाहे वो वृद्ध हो, सिंगल हो, महिला हो, जिनके परिवार अपने पास हैं, जो आर्थिक लेवल पर थोड़े से सुरक्षित है, उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रही है कि शूटिंग कब शुरू होगी। क्योंकि हम घर में खाली बैठने का आदी नहीं है, क्योंकि एक टाइम आता है कि आपने फेसबुक पे डाल भी दिया कि आज मैंने इतने बर्तन धोए, आज मैंने ये चिकन बनाया, आज मैंने ये केक बनाया, आज मैंने ये पेस्ट्री बना दी, ये सब हो गया। उसके बाद जो एंग्जाइटी, फिर जो रात को नींद खराब होना, ऐसे टाइम पर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड कि भाई पहले 2000 रुपए पहले हमने एक मैसेज भेजा सारे मेंबर्स को कि सिंटा ये मदद करना चाहती है, अपने बैंक कोड दीजिए, IFSC कोड दीजिए। फिर हमारी कमिटी वाले BMC से परमिशन लेके वो बैंक गए, बैंक में फिजिकल फॉर्म भर के सारे डिटेल्स करके, तो 2000 रुपए पहले दिए, फिर 2000 रुपए दिए, फिर सलमान खान बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से 3000 रुपए आए थे, वो हमने बांटे। फिर मिस्टर बच्चन, जिनकी हमने बात की थी, और कल्याण ज्वेलर्स और सोनी, इन्होंने मिलके बिग बाजार के कूपन्स बांटे, क्योंकि सिंटा बहुत कैश रिच नहीं है। फिर हमने keto.org पर एक अपील शुरू की, जो कुणाल कपूर जो एक्टर है उनका एक NGO जिसको सपोर्ट करते हैं, ये शुरू करना किया। और जिन लोगों के लैंडलॉर्ड्स तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि जो रेंटल की बात थी, वहां पर हमारे जोनल स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करा के लोगों को बोला कि अगर कोई लैंडलॉर्ड या मकान मालिक आपको तकलीफ दे रहा है, प्लीज एटलीस्ट हमारा जोनल स्ट्रक्चर उनसे बात करेगा। जो लोग अपने गांव चले गए थे, अपने छोटे शहर चले गए थे, और उनकी एंजाइटी और थी, तो उनसे एटलीस्ट फोन पे बात करना। तो हमारा लकीली, और हमारा स्टाफ भी घर से ही काम कर रहा है, क्योंकि हम सभी जितने लोग हम लोग इस पैनल पे हैं, हम सबकी स्थिति वैसे ही है। तो हमने कहा चलो आर्थिक लेवल पर जितना कर सकते हैं ये करें, और जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थिति क्लियर होगी, ये इसको हम विल असेस द सिचुएशन, टैकल एवरी बॉल एट वन टाइम। लेकिन बीच में जब हमने सुना कि कुछ कलाकार, उनको क्योंकि पेमेंट नहीं मिला है, और एक सीरियल के इतने सारे कलाकार आर थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, उनके साथ साथ वो टेक्नीशियंस भी, हमारे एक मेंबर ने सुसाइड कमिट किया। और हमें लगा कि काश वो जो एक डॉक्टर अंजलि करेक्ट कहेंगी, दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, जब आप एक ड्रास्टिक स्टेप लेने जा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक या खिलवाड़ या एक स्टेप लेने जा रहे हैं, काश उस वक्त हम अवेलेबल होते। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए गौतम से रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई वी मस्ट डू दिस, ताकि एक संस्था एट दिस टाइम ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम एटलीस्ट रूबरू होके हमारे लोगों से बात कर सके, कुछ वे सजेस्ट कर सके कि आर्टिस्ट कम्युनिटी अपने आप की मेंटल सैनिटी, उसका जो मानसिक संतुलन है, शारीरिक संतुलन है, इसको कैसे मेंटेन करे। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, दिस टू शैल पास। एक नया तरीका आ जाएगा शूटिंग का, बट जो एक स्टेट ऑफ लिम्बो है, उस स्टेट ऑफ लिम्बो से टैकल करने के लिए दिस वाज इम्पोर्टेंट। अमित, थैंक यू अमित। मैं आपसे और सवाल पूछती रहूंगी। डॉक्टर, it's been said कि fear और anxiety they are not totally negative. डरना और घबराना एक तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय इस सिनेरियो में कितना डर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को स्टेबल रख सकता है, और कितनी एंजाइटी इज ओके फॉर अस, बियॉन्ड दैट हाउ इट इज डेंजरस फॉर अस? देखिए, हमें डरना नहीं है, वी हैव टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, दोनों में फर्क है। ओके, वी हैव टू बी कॉशियस, मगर डरना नहीं है। ओके, एंड एंजाइटी हमेशा बुरी चीज नहीं होती है। अगर समझो, अगर आप बाहर जा रहे हैं, सो यू हैव टू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। ओके, कि आपको हाथ धोने हैं, या सैनिटाइजर लगाना है, या मास्क पहन के जाना है, और ज्यादा किसके नजदीक नहीं जाना है, आपको पार्टीज में नहीं जाना है। ओके, सो वी हैव टू जस्ट डू दैट। मगर उससे ज्यादा जब डर बढ़ता जाता है, अगर मैं घर में बैठी हूँ, अभी आपके ये सेशन के पहले मैं एक औरत से बात कर रही थी जो बोल रही थी मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मगर अभी मैंने फोन उठाया, ये फोन मेरे बालों को लगा, क्या मैं अपने बाल जाके वापस धोऊं? ओके, नाउ हर एंजाइटी, जो उनकी एंजाइटी है, वो OCD में बदल रही है।
ओके तो अगर दिन भर हमें सिर्फ बीमारी के ख्यालात आते हैं या नेगेटिव विचार आते रहते हैं, उसका मतलब हम डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। एंड अगर ऐसा हो रहा है, वी मस्ट टेक इमीडिएट हेल्प। हमारी नींद खराब हो रही है, हम खा नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन हम जैसे कोविड का स्कोर देख रहे हैं, यू नो, सो उसका मतलब है और देखिए आप लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपका माइंड। और अगर वो माइंड रिलैक्स रहेगा, आपको और अच्छी अच्छी आइडियाज आएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू मोर पॉजिटिव थिंग्स। ओके डॉक्टर, सो यू आर ट्राइंग टू से कि जब भी फेयर या एंजाइटी आए, सो वी शुड, दैट इज द होल थिंग, द मेंटल टॉक, यू नो, इंसान अपने आप से बहुत Yes. सारी बातें करने लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और जैसा आपने बोला, बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं, मैं खुद अकेली रह रही हूँ। सो राइट एक थ्रेशोल्ड आ जाता है इमोशनली एंड इन ऑल द वेज, आप सडनली अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते अकेले। हैं। यस उस यस। समय मतलब तो obviously, उस समय हाँ, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी दुनिया मेरे साथ है, यू नो। correct. एंड उस समय रीच आउट टू अ फ्रेंड, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जिनसे आपने बहुत सालों से बात नहीं की है। पिक अप द फोन। वो आपको जानते हैं एज अ बिग एक्टर, क्योंकि वो आपको टीवी पे देखते हैं। उनको पता नहीं है कि आपके साथ भी वही हो रहा है जो उनके साथ हो रहा है, जी जी यू नो। जी। डॉक्टर, आई कम अगेन बैक टू यू। पायल, आपसे एक सवाल है मेरा। पायल, सिंटा एज इट इज, दिस, यू नो, दिस एसोसिएशन इज नॉट वेरी बिग। यहाँ के जो फंड्स भी हैं, जिस तरह से हमारी मेंबरशिप्स हैं, जिस तरह से हमारी मंथली या एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं, ये इतनी ज्यादा नहीं है ऑब्वियसली। एंड अमित ने खुद बताया कि हमारे पास, वी डोंट रियली हैव टू मच ऑफ फंड्स टू हैंडल एवरीथिंग ऑल बाय देमसेल्व्स। तो हम किस तरह से गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को, क्या हम अप्रोच कर रहे हैं? इज देयर एनी वे कि हमें बाहर से भी कुछ मदद आ रही है? कुछ तो इन्होंने बताई, क्या हम एक्टिवली बाहर से कुछ हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर सकें? सी करुणा, जहाँ तक कैन यू हियर मी? यस यस। कैन यू हियर मी? हाँ, सो जहाँ तक ये एक्सटर्नल हेल्प की जो सवाल है, जैसे अमित जी ने कहा, जी हमारी बहुत टाइम से जब हम लोग सिंटा में आए एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को यही स्ट्रेस करते आ रहे हैं कि हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, बिकॉज टैक्स, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री हियर, and with the help of lot of executive committee members like मनोज जोशी जी हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे विक्रम गोखले सर हैं, इन्होंने काफी सारी एप्लीकेशन सरकार तक पहुंचाई है। हेतल परमार है जो कि मीरा रोड में जो है कॉर्पोरेटर है। ये लोग निरंतर जो है वो एप्लीकेशंस, अपील्स गवर्नमेंट से करते आ रहे हैं कि हम के खास तौर से इस टाइम पर एक इंडस्ट्री का स्टेटस तो बहुत जरूरी है ही है, साथ में इस टाइम पर खास तौर से उन एक्टर्स की जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, उनको, वो उन प्रोड्यूसर्स को अपील जानी चाहिए कि भैया जितना भी उनका बैकलॉग है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पेमेंट्स नहीं मिली है, वो तो कम से कम क्लियर करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं और उनको अभी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनके जितने भी बैंक बैलेंस है, सेविंग्स है, वो खत्म हो रहे थे। तो ये था कि भाई वो अगले महीने का रेंट कहाँ से मुहैया कराएंगे, तो एक वो भी अपील की गई। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने एक रिक्वेस्ट भी भेजी सारे लैंडलॉर्ड्स के लिए कि भाई आप किसी को जबरदस्ती एविक्ट नहीं कर सकते, अगर उनकी प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, तो उन्हें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, कहीं रेंट माफ कीजिए, कहीं उस रेंट की दर को कम कीजिए। सो ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है एंड इट्स अ वेरी ह्यूज बैटल। एंड आई एम नॉट सेइंग से, सी आई फील दैट एवरी कैलामिटी कैन आल्सो हैव अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरे ख्याल से अगर ये कोविड जैसी समस्या और ये लॉकडाउन जैसी समस्या नहीं आती, तो हमारे जितने भी इश्यूज हैं जो कहीं शायद हम लड़ रहे थे, लेकिन आज इतने उस इस लेवल पे सामने आए हैं दैट इट हैज टू बी एड्रेस्ड एंड नाउ within whatever a month and so. So Payal, is there any breakthrough? आपने जो सारी बातें कहीं कहीं कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है? Do you think we are getting some help and even producers are agreeing to pay on time? Karuna, I'll come in this because this Yeah, entire man. thing has been handled by Yeah. me. So I'll just add to what Payal is saying. The TV producers, which is the IFTPC, the Indian Film and Television Producers Council, इनके प्रेसिडेंट जेडी मजीठिया और उनकी कोर कमेटी के साथ हमारे 2 जूम कॉल्स हुए हैं और उन्होंने they've realized कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम. They are calling the broadcasters, speaking to the channels
on our behalf and on the behalf of the technicians also कि ये please अब ये 90 दिन की साइकिल आप मत कीजिए, because ये मदद जो है, आर्थिक मदद आपके अभी फिलहाल मदद नहीं, जिसका जो हक का है वो दे दीजिए पहले, जो हक का है वो आप पहले दें। और दे हैव अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम है, और जितने डिफॉल्टिंग प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग नहीं फॉर वॉट एवर रीजन, उनको प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और ब्रॉडकास्टर्स दोनों तरफ से एक प्रेशर भी डाल के उनको आस्किंग देम टू पे। दूसरा, द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, जिसके अंदर 30 क्राफ्ट्स हैं, they have also taken it up for our cause because we have an MOU with them, और वो भी दूसरी संस्थाओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो फंड्स बाकी के वर्कर्स के लिए आए वो सिंटा के कलाकारों के लिए भी आए। सीएम महाराष्ट्र के पास हमने एक पूरा SOP जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आगे काम कैसे होगा, कैसे सहायता होगी, क्या होगा, इसके 20 कंट्रीज के 64 यूनियंस, नॉट ओनली एक्टर्स यूनियन, इनका एक पूरा SOP कलेक्ट करके हमने सीएम महाराष्ट्र तक पहुंचाया है। मनोज जोशी हैज हैड अ कन्वर्सेशन विद प्रकाश जावड़ेकर जी कि भाई आगे जाके इंडस्ट्री कैसे फंक्शन होगी, ब्रॉडकास्टर्स कैसे फंक्शन होंगे। नेटफ्लिक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो फेडरेशन को भी और सिंटा के मेंबर्स मतलब एक पैसा करेंगे जिस दिन हमारा FCRA अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का काफी बड़ा से है। प्रोड्यूसर्स गिल्ड और IFTPC ने मिलकर भी एक फंड कलेक्ट किया है जो ट्रांसफर हो रहा है मेंबर्स को। तो हम धीरे धीरे क्योंकि हमको ये भी लगा कि अगर मतलब इसको कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो, या मतलब धीरे धीरे दें, क्योंकि एक साथ अगर हम कुछ फंड दे दें, उसके बाद अगर एक्टर अपना फंड एग्जॉस्ट कर लेता है जो इस बैंक में, अगर लॉकडाउन इंक्रीज होता है या कोई और समस्या आ जाती है, तो उस वक्त हमारे पास एक किटी होनी चाहिए ताकि हम उनकी मदद कर सके। इतना मूवमेंट हुआ है। हाँ, अमित, आपने जो कहा वो सब ठीक है, लेकिन इज देयर एनी क्राइटेरिया? क्योंकि जैसे कुछ अमेरिका में कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे यू हैव टू बी फिल्टर्ड आउट कि हाँ, यू आर एलिजिबल टू गेट सम मनी फ्रॉम आवर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्रिएटिव एक्टर फ्रेंड्स ये जानना चाहते हैं किस तरह से उनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद पहुंच पाए। ओके, आज इनफैक्ट आज वी आर टॉकिंग एक SMS जा रहा है because Manoj Joshi has spoken to the cultural ministry also, the INB ministry, the HRD ministry also, और हमारी समस्याएं इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन तक भी पहुंची हैं। फ्राइडे को हमने एक मेल डाला है। हमारी जो एक सिस्टर कंसर्न है, द सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें दिलीप साहब और जॉनी लीवर साहब और हेमा मालिनी जी, पंकज जी, सुधीर पांडे और हम लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं, हम लोग भी ट्रस्टीज हैं उसके, विक्रम गोखले जी भी उसके ट्रस्टी, सुशांत सिंह भी ट्रस्टी हैं। तो ट्रस्ट की तरफ से एक मेल गया, निर्मला सीतारमन जी ने खुद रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है, और हमने उनको एक मेल लिखा है। अब हमने आज एक SMS भेजा है सबको कि प्लीज सबमिट योर फॉर्म 26AS या आपके 2 साल के IT और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो जब भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी सहायता आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू कोविड, इन द नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर, क्योंकि ये समस्या लंबी चलने वाली है, तो आप अपने डिटेल्स भेजिए ताकि फंड्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए। बिकॉज इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग, हम फिजिकल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट ये लिस्ट हमारे पास हो। हम ये लिस्ट गवर्नमेंट और NGOs को भेजे जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि भाई हम अपनी डिटेल्स नहीं शेयर करना चाहते हैं। बट मैं सबको ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये बताना चाहूंगा कि ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जब भी गवर्नमेंट या कोई बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलाकारों या क्रिएटिव लोगों के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी डिटेल्स भेजिए, और एक गूगल फॉर्म है उसके साथ, तो आज वो सब तक पहुंच जाएगा जितने हमारे 10,000 प्लस मेंबर्स हैं। और इसमें हम सोच रहे हैं कि पहले हम अपने घर को सुरक्षित करें, यानी कि सिंटा यानी एक्टरों का घर, उसके बाद होपफुली दूसरी क्रिएटिव कम्युनिटी बेनिफिट होती है, हमको अच्छा ही लगेगा। जी जी, शुक्रिया अमित। डॉक्टर, आजकल के वक्त में हर इंसान न्यूज पे चिपका पड़ा है। दे आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग, अपडेट्स, व्हाट्सएप, रूमर्स, मतलब हर तरह की न्यूज और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक हाउ मच इज इनफ? बियॉन्ड इट वी लूज आवर मेंटल हेल्थ। देखिए ना, हमको कोविड में PhD करनी है, राइट? तो अगर हम वही चीज देखते रहेंगे, ना कोविड कोई क्रिकेट मैच है that we have to continuously know the score. Okay, अभी तो हमें ये नेगेटिव न्यूज से थोड़ा दूर रहना है।
हाँ, इफ यू वांट इंफॉर्मेशन, जो आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलती है WHO साइट पे, या सुबह को 5 मिनट आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए। मगर ये जो कोविड का जो डर है, ओके, उसने इतना भय क्रिएट किया है पूरी दुनिया में कि अगर किसी को ये बुखार होता है, एंड एक्चुअली अगर हम देखें तो 80% लोग को थोड़ा सा बुखार खांसी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। ओके, इट इज ओनली द 20% ऑफ पीपल, उसमें से भी 10, 15, 18% ऑफ लोगों को मॉडरेट प्रॉब्लम होती है और वो अपने घर चले जाते हैं। इट इज दैट वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनके पहले ही प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। मगर क्या होता है, अगर हम पूरा दिन ये न्यूज़ देखते रहते हैं तो पूरा दिन नेगेटिविटी नेगेटिविटी चल चल के और हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, और हमें नींद नहीं आती है, और हम अपसेट हो जाते हैं। सो इट इज बेटर to use social media, not to get used and abused by social media, you know. Yeah. And positive social media आप use करिए ना, आप लोग तो उसमें उस्ताद हैं। डॉक्टर, कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज या हाउ टू मेंटेन अ डिसिप्लिन लाइफ, कुछ टिप्स आप हमारी कम्युनिटी को शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक तो एज आई स्टार्टेड विद मेंटेनिंग अ रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, अपना खाना बनाइए, ओके, पूरी साफ सफाई करिए। दिस इज द टाइम टू डीक्लटर। हमारे घरों में हमको पता चला होगा कि लास्ट 3 महीनों में इतने सारे नॉन एसेंशियल चीजें हैं। दिस इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। ओके, तीसरी चीज है री इन्वेंट योर सेल्फ। अभी इसमें क्या है कि वी ऑल एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड क्रिएटिव पीपल, इसीलिए आप अपने घर छोड़ के इधर आए हैं। दिस इज द टाइम, आप देखिए आप में वो कौन सा एक टैलेंट है जो हम पहले सोचते थे ना, जब भी हमें समय मिलेगा मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, या मैं ये करूंगा वो करूंगा। एक तो वो करिए, प्लस अपनी जो आइडियाज हैं डिस्कस देम विद पीपल। कोई आइडिया छोटी नहीं होती है, कोई आइडिया खराब नहीं होती है। ओके, इफ यू आर द फर्स्ट वन, एंड जैसे मैंने बोला, कनेक्ट विद पीपल अराउंड यू एंड डिस्कस विद देम, क्योंकि उसमें ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। शर्माइए मत अपने प्रॉब्लम्स बताने में। ऐसे मत सोचिए अरे लास्ट ईयर तो मुझे काम था, रोज था, पैसे था, आज मुझे नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे बड़े एक्टर्स होते हैं वो अपनी हर पिक्चर के पहले इतने एंग्शियस हो जाते हैं। तो अगर वो एंग्शियस हो सकते हैं तो हम भी तो हो सकते हैं। ओके, सो डू नॉट फियर। इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, हमें सिर्फ सोचना है कि मुझ में वो क्या चीज है जो दूसरों में नहीं है। जी, हमें एज एन आर्टिस्ट, कलाकार के रूप में कुछ नए एवेन्यूज, कुछ नए रोजगार के माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, और वो एक तरीके से एक सकारात्मक अप्रोच है। इट्स गोइंग टू बी very helpful in our personal growth as well as professional growth. Amit, plus one more thing कि अपने जो हमारे जो what we used to think as essentials, हम लोग ने इतने मतलब actually last 3 months में we have actually realized what is essentials and what was extra. वो एक्स्ट्रा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं यही सेम कपड़े पहन रही हूँ, हर मतलब 5 दिन में वही 5 कपड़े रोटेट होते रहते, एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है, और हमारे ऐसे ही हम लोग इकट्ठे करते रहते हैं। सो आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट दैट। थैंक यू। अमित, हमारे सिंटा एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं और जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, सो डेफिनेटली वी लैक मैन फोर्स। सो आपने मुझे बोला अभी कि आपके जोनल्स हैं और आप हर एक्टर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आर यू इनफ, लाइक योर स्टाफ इज इनफ, आप लोगों की मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इनफ है, और डू यू नीड सम मोर मैन पावर इन द एसोसिएशन टू हेल्प यू आउट? Karuna, first, I think it's important to understand what this association is. All of us, including Payal and us, we are working for this honorary. We are working functional actors. So whatever we are doing is for our community. Yeah. It is, and I am on this platform saying this कि भाई जो पिछले 5 साल से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, और जितने भी हमारे प्रीडेसेसर्स रहे हैं, ये सब ऑनररी। हम अपना रेगुलर शूटिंग का और घर का काम छोड़ के इस संस्था के लिए काम करते हैं। हमारे स्टाफ स्ट्रेंथ सिर्फ 7 लोगों का है। जो जोनल स्ट्रक्चर है, जोनल स्ट्रक्चर में जितने भी एक्टर्स हैं वो इसमें इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको अपनी संस्था में विश्वास है। वो अपने कलाकारों के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिल से कुछ काम करना चाह रहे हैं। मसलन जब हमको राशन की जरूरत थी, कुछ मेंबर्स ने कहा हम नाला सोपारा में, वसई में ये है, क्या करें। मैंने फोन उठा के रवि किशन को फोन किया। रवि किशन MP हैं। रवि किशन ने
उनके रिसोर्सेज से 300 किलो राशन ऑर्गेनाइज कर दिया। हमने स्टाफ को रिक्वेस्ट की, बीएमसी से परमिशन ले ली, एक वैन ऑर्गेनाइज होगी और जहां जहां ये एक्टर्स जहां भी पहुंचा पाए हमने पहुंचा दिया। ये तो करना बहुत जरूरी क्या है कि आई टेल यू व्हाट, सिंटा है क्या, ये पहले समझने की बात है। सिंटा पूरे दुनिया में 5th लार्जेस्ट यूनियन है एक्टरों का, कलाकारों का, जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन से लेके जो मतलब हमारे महानायक हैं, और एक अमित बैल जैसा अदना सा कलाकार भी इसका मेंबर है, और पायल भी, गौतम चतुर्वेदी भी। बंबई शहर में और आसपास के शहरों में जितने, आप भी कोरोना मेंबर हैं, तो आप जो काम करते हैं तो आपको सिंटा का मेंबर होना। हम ऐसे टाइम पर एग्जीक्यूटिव कमिटी हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये जो समस्या है जो हमारे दूसरे कलाकारों की है, मेरे साथ भी है, मुझे भी चेक्स नहीं मिले, पायल को भी यही समस्या है, आपको भी वही समस्या है, मुझे भी वही समस्या है, बट मुझे अपनी निजी समस्याओं से उभर के बाहर निकल के आई विल हैव टू लुक फॉर माई कम्युनिटी, बिकॉज मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी एंजाइटी होती है। मैं डॉक्टर अंजलि का पेशेंट रह चुका हूँ उनसे, एंड शी नोज आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पेशेंट। मैं बहुत ही मतलब तकलीफ दे हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर के साथ मुझे ज्यादा ज्ञान बांटना चाहिए। आई हैव अ डिफरेंट प्रॉब्लम, आई थिंक आई एम सुपर इंटेलिजेंट एंड द डॉक्टर शुड टेल मी कि नो, यू आर नॉट द डॉक्टर, आई एम द डॉक्टर, यू आर द पेशेंट। और ये प्रॉब्लम मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को भी है, पायल को भी है, कि अमित जी जब बोलते हैं तो फिर बोलना बंद ही नहीं करते। मे बी दैट्स द वे दैट आई रिकवर और यू नो टेक ओवर माय एंजाइटी। अब मैं कह रहा हूं कि आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स दैट एवरी एक्टर इज फेसिंग। हो सकता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ लोगों से बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों से बदतर भी है। मैं, जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा, कि मैं सोचता हूं कि चलो लेट मी लुक एट द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मैं उससे तो बेहतर हूं, ओके, मेरा ईएमआई जा रहा है, रेंट जा रहा है, परिवार सुरक्षित है, खाने को मिल रहा है, बर्तन धो रहे हैं। जो अब मैंने क्या डिस्कवर किया है कि मेरे फ्रिज और किचन में कुछ 100 मसालों के डब्बे थे जिनको मैंने फेंका, क्योंकि हम जब भी मॉल में जाते हैं ये मसाला ले लेते हैं, ये मसाला लेते हैं, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर मैंने रियलाइज किया कि अरे ये इतने सारे न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स हैं जिनका मुझे कोई काम नहीं, तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। मैंने फिल्में देखी, मैंने मेरे वाइफ को और मेरे बेटे को मेरी बहुत खराब एक्टिंग करके उनको बोर भी किया, ठीक है। फिर मेरे लेक्चर्स चलते रहे। फिर एक स्टैंडर्ड हर रोज एक फोन आता है, अमित जी आप बताइए शूटिंग कब शुरू होगी, है ना। अब मेरे पास वो आंसर रटा भी हुआ है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट को दे चुका हूं, लेकिन आप लोग शूटिंग पे तब जाएंगे जब हमें लगेगा कि माहौल सुरक्षित है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज एन एसोसिएशन, एज एन इंडिविजुअल। सो आई एम कीपिंग माई सैनिटी अलाइव एंड ट्राइंग टू कीप अदर सैनिटी अलाइव, कि अगर मैं थोड़ा सा सेन हूं, मेरे जैसा पागल आदमी, तो हो सकता है कि मेरे पागलपन को अगर मैं किसी और पे डाल दूं, तो हो सकता है कि उस पागलपन से वो और सेन हो जाए। बिकॉज आई रियलाइज कि दिस कम्युनिटी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। Actors, writers, directors, music composers, all of us are stressed. And I'm sure, and Dr. Anjali has, I think a big chunk of her clientele is people like us. So she understands these problems. तो मैं जो बोल रहा हूँ वो रॉकेट साइंस नहीं है, ये है जो हो रहा है। अब इसके बीच में मुझे अपनी समस्या भी देखनी है, मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की समस्या भी देखनी है, और मेरे 10,000 मेंबर्स की समस्या भी देखनी है, प्लस प्रोड्यूसर से बात करनी है, गवर्नमेंट से बात करनी है, ब्रॉडकास्टर से बात करनी है, पैसे भी वसूल करने हैं, एड भी लेना है, और फिर यहाँ से गुड कॉप बैड कॉप भी करना है। तो इसमें मेरा दिन निकल जाता है। बट आई रियलाइज दैट देयर इज अ रोड मैप दैट नीड्स टू बी मैप्ड, एंड इन द मिडल ऑफ दिस, when I hear a news of a suicide or somebody is cutting his wrist or thinking of banging his head against the wall, that puts me in a back seat when I require external help from people like Dr. Anjali. Amit, I'll come to that very soon. A few of our viewers, they are requesting कि उन्हें पर्सनली, जैसे हमारे यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होती है सिंटा की तरफ से, एसएमएस किया जाए, उनके जोनल हेड्स के नाम, नंबर, किस तरह से वो अप्रोच करें, क्योंकि एक्चुअली में उनके पास, या टेक्निकली दे आर नॉट वेरी अपडेटेड, और किस तरह से, बिकॉज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये सब सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जेन्युइनली कैसे अप्रोच करें, कैसे अपनी डिटेल्स आप तक पहुंचाएं, क्या करें। एक शायद इस वेबिनार के बाद आप कुछ इस तरह का एसएमएस अगर मैं करूंगा, तो। बिकॉज अभी मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मैं एक मैसेज ड्राफ्ट करूंगा सारे 10,000 के 10,000 कलाकारों को कि ये हमारे ये जोनल स्ट्रक्चर है, ये जोनल हेड्स हैं, ये को जोनल हेड्स हैं, ये इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। और प्लीज आप इनको अपने अपने एरिया में संपर्क कीजिए और जोनल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनिए, क्योंकि परसों
हमारी एक लंबी डिस्कशन हुई थी जूम पे सारे टीवी प्रोड्यूसर्स के साथ कि आगे काम कैसे शुरू करना है, हमको ओवरऑल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस सेट पर कैसे हैंडल करना है। तो इससे पहले की जो सारी प्रतिक्रियाएं और सारे जो एप्रीहेंशन जो लोगों के मन में है, हो सकता है कि ये जो SMS जाएगा, और मैं ये सारी डिटेल्स सिंटा के वेबसाइट पे भी डाल रहा हूँ, और हम सोशल मीडिया, हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे वी आर अगेन स्टार्ट पुटिंग द डिटेल्स, ताकि बिकॉज लाइक डॉक्टर अंजलि सेज के बात करना है किसी से, तो हो सकता है कि एक नंबर उठा के किसी ने फोन किया, he or she feels relieved, एक रे ऑफ होप मिले, एंड देन वी कैन टेक इट फर्दर। अमित, शूट कब शुरू होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, ये मैं आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में। आई एम गोइंग बैक टू डॉक्टर नाउ। डॉक्टर, यू नो अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर कम्युनिटी दे आर स्टेइंग विद फैमिलीज, अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, एंड बहुत सेंसिटिव कॉम है हमारी, मतलब बहुत ही यू कैन से दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत अंदर ही अंदर उनके इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते हैं कि क्या होगा, मैं अपने बच्चों की फीस कैसे दूंगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, और कहीं मुझे हो गया तो हु विल लुक आफ्टर देम। तो दे आर रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आप अपने माइंड को कितना भी समझा दें, आपका माइंड उस ओर जाता ही है। यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वरिड एंड गेटिंग एंग्शियस। ऐसे केस में किस तरह की काउंसलिंग या क्या खुद को इंसान कैसे पीसफुल बना पाए? देखिए, एक तो है हमें अपने फैमिली से भी क्लियरली बात करनी है। ओके, हम लोग सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए मनी की बात तो हम कर ही नहीं पाते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे बताएं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मगर जब तक आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, अपने स्पाउस को नहीं बताएंगे कि वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस टुडे, ओके, ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके बच्चे आपको सजेशन दे सकते हैं कि पापा आप ये अच्छा काम करते हो, या मम्मी आप ये अच्छा काम करते हो, कैन यू डू दिस, या फिर वो ही आपको बताएंगे कि चलो हम खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। तो जब फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो दो चीजें करनी है, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर इज ओनली अबाउट स्विमिंग, मतलब हमको सिर्फ पानी के ऊपर निकलना है, पैसे कमाने नहीं है। पैसे कमाएंगे हम बाद में जाके, मगर सिर्फ पानी से ऊपर अगर हमारा सर रहेगा 1 साल के लिए, तो हम अच्छे से चल पाएंगे। यू नो, जिस दिन, जैसे आप बता रहे थे कि आपके जो मतलब किसकी डेथ हुई तो आप लोगों को कितना अपसेट लगा, मैं आपको बता रही हूँ जो डॉक्टर कम्युनिटी है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ओके, पिछले 2 महीने से हम रोज उठते हैं विद द न्यूज ऑफ अ डेथ, ओके, कि कोई हमारा डॉक्टर वहां पे मर गया है। तो वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। मगर दिस इज द टाइम नाउ हमको सोचना है कि हमारा नेक्स्ट ईयर कैसे चलेगा, हमारे इसेंशियल्स क्या हैं। घर, यही घर में मुझे रहना है या मुझे छोटे घर में जाना है। मुझे अगर 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियों की जरूरत है, अगर नहीं है तो गाड़ी को निकाल दीजिए। एक गाड़ी है, गाड़ी से स्कूटर में चले जाइए। जो आपके इसेंशियल्स हैं, जो एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्राज को हमें निकालना है। ओके, और तीसरी बात है, अपने लोगों से बात करिए कि सो दैट यू कैन डिस्कवर कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे काम के लिए वेट करना है या साथ साथ में मुझे डबिंग भी शुरू करना है, कि एटलीस्ट मुझे सो व्हाट, अगर मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं, 500 रुपए मिल तो रहे हैं। शर्माना नहीं है पैसे कमाने में। जी डॉक्टर, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइंड आउट हमारे कुछ रोजगार के नए आयाम हम ढूंढ सकते हैं। पायल, मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाहती हूँ, हमारे कुछ को एक्टर्स ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और अभी हाल फिलहाल में भी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रेशर्स एंड रिलेशनशिप प्रेशर्स एज वेल। उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन as a Cinta member, or you are into the committee, any advice that you want to, you know, share with your co-actors and your community? सी करुणा, हम क्रिएटिव लोग भी थ्राइव ऑन आवर ऑडियंस बेसिकली, ओके, एंड ये सबके लिए है। हम अगर 1 महीना कैमरा फेस नहीं करें तो हम सबको इनसिक्योरिटी होती है ना, कि वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट क्रिएटिव इनफ, वी आर नॉट ल्यूक्रेटिव इनफ। सो एटलीस्ट जो मैंने अपने साथ जो शुरू किया है कि हम कुछ लाइक माइंडेड दोस्त लोग मिलकर, सी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, एंड आई थिंक इससे अच्छा टाइम शायद दोबारा इतना जो टाइम, जैसे डॉक्टर अंजलि ने भी बोला, हमारे पास नहीं आने वाला है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अच्छा लगे आपको, एक स्किल अपने अंदर वो आइडेंटिफाई करनी है। और हम सब क्रिएटिव हैं, हम कुछ नहीं तो स्टोरीज पढ़ सकते हैं, वी कैन रिकॉर्ड फ्यू स्टोरीज, वी कैन जस्ट पुट इट अप ऑन फेसबुक है, इंस्टा है। अब तो इतने ज्यादा एवेन्यूज है कि आपको घर पे बैठे ऑडियंस मिलेगी।
ठीक है, हाँ वो आमदनी का जरिया नहीं है, लेकिन जो आपको एक एडुलेशन, जो एक आपको पॉजिटिव सपोर्ट वो मिलने वाला है, वो आपको घर बैठकर भी मिल सकता है. इट इज ऑल्सो टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, क्योंकि क्या है, बाकी प्रोफेशंस में लोग घर पे बैठकर भी काम कर सकते हैं, हमारे लिए तो वो भी नहीं है. हमारे लिए या तो सेट है या हमारा घर है, या whatever, you know, the travel time or whatever. So how do you become creative at home? कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पीपल, जो ग्रुप्स है, जो फ्रेंड्स हैं आपके, जिनसे आपका अच्छा है, तालमेल है, जो आपकी शेयर करते हैं वो स्किल्स, उनके साथ बैठिए, वर्कआउट कीजिए, कुछ शॉर्ट स्टोरीज है वो पढ़नी शुरू कीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए. एंड ये जरूरी भी नहीं कि आपके ऑडियंस के लिए, बट फॉर योर ओन एक्सरसाइज दिस विल बी वेरी वेरी एसेंशियल. दैट्स एट लीस्ट व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग. एंड जैसे डॉक्टर अंजलि का, हर दोस्त बहुत जरूरी होता है. एटलीस्ट मैंने ये कोशिश की है कि एक दोस्त ऐसा जो मुझसे इमोशनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक या दो. I always reach out to that person when I am feeling very anxious and when I am, feeling low and depressed. So वो हाँ, reaching out to friends is very very essential. Doctor, people who are, as you said, who are struggling and they should find out some other. से लोगों का erratic lifestyle हो गया है. We all know it that, we all know that these things are like, erratic lifestyle, late उठना, late सोना, इससे हमारी mental health पर क्या फर्क पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि लोग disciplined हो. देखिए, डिसिप्लिन रहना क्यों ठीक है, क्योंकि जब आप वही टाइम पे उठते हो तो वो आप अपने बॉडी को बता रहे हो कि आई एम इन चार्ज ऑफ यू, यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ मी. ओके, तो एक वो मैसेज मिलता है. और इस चीज को हम बोलते हैं फोर्स्ड नॉर्मलाइजेशन. जितने हम नॉर्मली चलते हैं उतने हमारे बॉडी को वही मैसेज मिलता है. अगर हम लेट उठेंगे और बिस्तर में बैठे रहेंगे, बिस्तर से निकलना बहुत जरूरी है. बिस्तर में ही सोएंगे, खाएंगे, वहीं पे पिक्चर देखेंगे, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, माइंड कंफ्यूज हो जाता है. उसे पता नहीं चलता है कि आपके सोने का टाइम है या उठने का टाइम है, और उससे फिर धीरे धीरे डिप्रेशन शुरू हो जाती है. दिन में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे करिए आप. 1 घंटा योगा करिए, 1 घंटा जंपिंग करिए, जॉगिंग करिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था, हमने क्या किया था, मैंने घर में रूल बना दिया था कि 6 से 8 बजे तक सब एक्सरसाइज करेंगे. इतना फनी साइड था कि एक ही हॉल में कोई नाच रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई भाग रहा है. ओके, एंड धीरे धीरे ये एक रूटीन बन गया. ओके, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सब चीजें करें. आप, अगर हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, मगर थोड़ा सा पानी आप अपने पक्षियों को दे दीजिए, उससे आपको खुशी होगी. आपके जो बिल्डिंग में नेबर्स हैं, उनके लिए कुछ काम करिए कि मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने, आपको कुछ चाहिए क्या. और आप जब किसी और का हेल्प करेंगे, यू फील वेरी वेरी हैप्पी. जैसे सिंटा के लिए भी, अगर आपके लोगों के लिए भी वो कुछ काम करेंगे, तो एटलीस्ट अपना दिमाग तो एक जगह पे डाइवर्ट हो जाता है, और फिर हम लोग को फिर वही आइडियाज अच्छी आने लगती है. थैंक यू. अमित, सवाल जो सभी जानना चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है, कब तक शूट शुरू होगा, व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मल, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह से सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर शुरुआत की जाएगी. वी कैन गो ऑन ऑल ऑफ दीज नाउ. बहुत भारी भरकम सवाल है जिसका उत्तर भी बहुत भारी भरकम होगा. उससे पहले मुझे डॉक्टर अंजलि की एक बात पर यह है कि मतलब माय डॉग इज डेफिनेटली इम्प्रेस्ड विद माय एक्सरसाइजिंग कैपेबिलिटीज एट होम, क्योंकि वो देखता है कि ये क्या हो रहा है. ये पहले तो इंसान जिम जाता था, अभी ये सुबह अजीब सी हरकतें यहाँ पर जो कर रहा है, तो ही इज प्रीटी इम्प्रेस्ड. सो आई थिंक आई हैव केप्ट हिम अम्यूज्ड. दूसरा, मेरे बिल्डिंग में, जैसा डॉक्टर अंजलि कह रही थी कि आपके बिल्डिंग के लोगों की हम मदद कीजिए. हमारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की वजह से आई हैव नाउ कम टू नो कि मेरे नेबर्स कौन हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं. मतलब उस दिन मेरे पास एक बेक बीन्स का एक कैन था, लेकिन मेरे पास कैन ओपनर नहीं था. अब कैन ओपनर कैसे ऑर्डर करूं? मैंने ग्रुप पे डाला, एक नेबर ने कहा आई हैव अ कैन ओपनर. उसके गेट दरवाजे के बाहर गया, उसने प्लेट में बकायदा रैप्ड इन सैनिटाइज्ड पेपर कैन ओपनर रखा हुआ था, और उसने बोला एंजॉय योर मील. मैं लेके आया. उसके बाद देन ही वाज मिसिंग समथिंग, जो मेरे पास एक प्लायर था वो मैंने उसको दिया.
So I thought, what a wonderful exercise. I've just मतलब कि मैं एक प्लायर और एक कैन ओपनर की वजह से हमारी दोस्ती हो गई, और वो अंग्रेज है. He comes from Nevada and his family people over there are quarantined because they are his cousin is COVID. मैंने कहा तो ये आदमी यहाँ पर भारतवर्ष में सुरक्षित है और उसको he's made a family over here, and I met a friend from America who stays in my building who I never knew existed. Okay, so that is something very exciting for me. अच्छा, अब शूटिंग कब शुरू होगी इस पे पिछले 1.5-2 महीने से बहस चल रही है. लोगों के इंटरव्यू भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और सब परेशान है. मतलब अमित जी भी इंस्टाग्राम पे अपने ग्रैंडसन के साथ जिम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और कुछ एक्टर ने पोस्ट किया कि आज मैं पक्षी को पानी दे रहा हूँ. हमारी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, जया भट्टाचार्य, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत काम करती हैं. वो एनर्जी हीलर भी हैं. शी हैज ऑफर्ड हर सर्विसेज कि मैं सिंटा मेंबर्स के लिए एनर्जी हीलिंग करूं. बट अब ये क्या है, ये सब चीजें मतलब कब तक चलेगी? जिस दिन सीएमओ महाराष्ट्र कहता है जाइए भाई शूटिंग कीजिए. तो परसों हमारी एक लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें हमारी कमेटी और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स थे. 2 ऑप्शंस हैं, प्लान ए, प्लान बी. हमने हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि शूटिंग कैसे होगी, उसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या हैं, WHO नॉर्म्स क्या हैं, ICMR के नॉर्म्स क्या हैं, इसके अलावा वायरोलॉजिस्ट सेट पर होना, इंटीमेसी गाइडलाइंस क्या होंगी, हाउ आर द सेट गोइंग टू बी सैनिटाइज, क्लीनिंग कैसी होगी, क्या होगी. बिकॉज जैसे एक ऑफिस को आप सैनिटाइज करके सुरक्षित करते हैं, ऑफिस में आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं. शूटिंग में जो हमारी प्रॉक्सिमिटी होती है, नॉट ओनली एज 2 एक्टर्स, डायरेक्टर, एक्टर, साउंड रिकॉर्डर जो आपको माइक लगाने आता है, मेकअप वाला, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, केटरिंग डिपार्टमेंट, हम एक सेट पर कम से कम 100 से 150 लोग काम करते हैं. आप ये तो पकड़ के चलिए कि इस पे डायलॉग शुरू हो गया है, क्योंकि जो बैकस्टेज वर्कर्स हैं, और थिएटर बंद है, द थिएटर, इवन लाइव परफॉर्मेंस बंद है. सो दैट मींस द म्यूजिक इंडस्ट्री, सिंगर्स, एवरीबॉडी इज आउट ऑफ वर्क राइट नाउ. अब जब भी शुरू होगा तो एक साथ शुरू होगा या फेजेस में शुरू होगा. ऊपर से टेलीविजन इंडस्ट्री पूरी बंबई और बंबई के आसपास में है. फिल्म्स, वेब सीरीज और बाकी की चीजें बंबई से बाहर शूट होती है. बाकी के स्टेट्स के नॉर्म्स क्या हैं, कौन कैसे ट्रैवल कर रहा है. एक तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि डॉक्टर अंजलि अग्री करेंगी, आई थिंक शी विल बी एबल टू बेटर. कोविड इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर सम टाइम, टिल वी डोंट गेट अ वैक्सीन, टिल वी डोंट गेट इनटू हर्ड इम्यूनिटी. ये सारी चीजें रहेंगी. हाँ, मतलब स्वाइन फ्लू भी आया था, स्पेनिश फ्लू भी आया था, एबोला भी आया था, सार्स भी आया था, HIV भी आया था. ओके, I mean, as these we've lived with it, and the human spirit is strong. That's why we are humans. It's a strong spirit. We shall overcome. Okay, casualties will be there, collateral damages को हम कहते हैं, वो तो है, वो हो ही रहा है. Okay, मैं तो न्यूज चैनल देखता भी नहीं. मुझे सिर्फ ये है कि अब गवर्नमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स जिस दिन एक डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, सैक्रोसैंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है जिस पे ICMR, Ministry of Culture, Ministry the Information and Broadcasting Ministry, Ministry of Labor, Ministry of Skills, okay, with the BMC stamp, with ICMR guidelines approved by the WHO, we are more than ready to shoot. And countries, the US is starting to shoot. They have started creating a model, the new way. This is how the industry is going to function for the next 1.5 years at least, till the COVID crisis stays. तब तक धीरे 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 शुरू होगा. यूनिट साइज रिड्यूस करना और आधे लोगों को बेरोजगार करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं. ओके, एक तरफ जैसे डॉक्टर अंजलि कह रही है कि हमारे भाई 2 गाड़ी की जगह आप 1 गाड़ी रखो, चलो वो आप छोटे घर में आ जाओ, ये आ जाओ, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है वर्कर की या लोअर एंड एक्टर की, चलिए हम लग्जरीज में नहीं इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट 1.5 year, बट नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल, टू कीप अवर माइंड सेन, वी हैव टू स्टार्ट शूटिंग एंड वर्किंग. ओके, उससे पहले जो हम कर रहे हैं कि let us now start creating platforms on the virtual media to conduct workshops like this, conduct webinars on speech, acting, modulation, diction, maybe stress management, improvisation, new techniques of performance, things to read, what to watch, film appreciation, theater appreciation, poetry appreciation, an open mic session. ये सब हम करेंगे because इंडस्ट्री को शुरू होने में आप पकड़ के चलिए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब फ्लाइट शुरू होंगी, ये शुरू होगा, आज से लेके
at least for another 1 month we are in the same position. लॉकडाउन निकल सकता है, but the film industry, TV industry, media industry, theater industry, creative industry can't start. The writer can write from the precincts of his computer या अपने but उस pen to performance के लिए जो एक बेसिक कॉम्पैक्ट इंडस्ट्री जो चाहिए, जिस तरह से एक स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्ट्रक्चर को खड़ा होने में मिनिमम 1 महीना लगेगा. सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हमारा डेली डायलॉग हो रहा है, यस नो, नहीं ये हो सकता, ये नहीं हो सकता. और एक पॉजिटिव अच्छी बात ये है कि जो हमने गवर्नमेंट को भेजा है, जो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से आया है, टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल की तरफ से आया है, ऊपर से everybody has given us the assurance that once the COVID crisis is moved, a lot of changes will come in the way we work in terms of working hours, payment terms, the way the industry functions. They have given us the guarantee, let us together get over this crisis economically, physically, emotionally, mentally. After that, a new normal, a positive new normal for all will come, because it has shaken up everybody, not only us, all the stakeholders also. अमित, संक्षेप में आपने जो कहा वो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी. कोशिश की जाएगी कि सबको काम मिले, करेक्ट, सिर्फ कुछ चंद लोगों को नहीं. फाइनेंशियल एड मिली जाए, मॉरल सपोर्ट मिला जाए, किसी तरह के वर्कशॉप्स, वेबिनार्स रखे जाएं ताकि वो अपने आप को क्रिएटिवली एक्टिव रख सकें, जैसा कि हमें पायल ने भी कहा. उसके अलावा जो भी हमें गवर्नमेंट से एड आ रही है और जो न्यू नॉर्मल होगा, डेफिनेटली वो पहले जैसा नहीं होगा. और कोविड जाने वाला नहीं है, अगले 1.5-2 साल तक कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हम कह सकते. nobody has said anything so far. so जिस भी हालात में हम हैं, उसमें हम कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कितनी जल्दी शूट कर सकते हैं, आई एम श्योर ये सारी कोशिशें सिंटा अपनी तरफ से कर रहा है. सभी लोग कर रहे हैं, सिर्फ सिंटा नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं. सारे स्टेक होल्डर्स. डॉक्टर, आपसे एक आखिरी सवाल जाने से पहले, बिफोर आई वाइंड अप, इज शी विद अस? Yes, yes. Yeah. So, doctor, as per you, what do you think is going to be the new normal? किस तरह की जिंदगी आने वाले वक्त में हम देखते हैं, किस तरह का सिनेरियो रहने वाला है, होने वाला है? देखिए, एक तो है जो नया इंसान है वो पहले वाले इंसान से बहुत अच्छा होने वाला है, राइट? क्योंकि वी हैव ऑल स्टार्टेड केयरिंग एंड शेयरिंग, जो हम नहीं कर रहे थे पहले. हम सबको वो छोटे से वायरस ने बिल्कुल ग्राउंड पे ले आए हैं कि चलो अभी आप छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, मैं आपका बाप हूँ. ओके, तो आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू इवॉल्व एज बेटर ह्यूमन बींग्स. ओके, यस, वी हैव टू शेयर आवर रिसोर्सेज. जैसे अमित जी ने बोला कि उन्होंने अपना कैन ओपनर दिया, इन्होंने वाइसर दिया, तो वैसे ही हम सबको शेयर करना है. ओके, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड वे फॉरवर्ड. प्लस घर से काम करना है. आप लोग कहते हैं कि आप लोग घर से काम नहीं कर रहे हैं. मैंने इतनी अच्छी पिछले महीने में इतने अच्छे इनिशिएटिव्स देखे हैं, जहाँ पे लोग अपने घर से काम कर रहे हैं. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट यू कैन डू इवन फ्रॉम होम. ओके, in fact, I think I would also like to add कि you should start having competitions also of creative ideas coming, और देखिए क्या ideas आते हैं, so I feel कि just be positive, डरिए मत. Thank you, doctor. Just be positive and see how life takes over. बहुत खूबसूरत इनपुट था, और हमारा आज के इस वेबिनार का उद्देश्य भी ये था कि इसको जितना सकारात्मक हो सके, जितना मॉरली हम लोगों के साथ जुड़ सके, वो करें. गौतम, कुछ क्वेश्चंस हैं अटेंडेंट्स के लेना चाहते हैं. गौतम, प्लीज कैरी फॉरवर्ड. या, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच. दिस वाज सो एनलाइटनिंग एंड सो इंफॉर्मेटिव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवे फॉर ईच वन ऑफ अस इज कि कॉशियस रहिए, स्कैर्ड मत रहिए. अपना जो ध्यान रखना है, हाथ धोने हैं, मास्क पहनने, वो करिए, लेकिन घबराए मत रहिए कि अब क्या होगा, अब मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है. वो जो एंग्जाइटी है, उससे हमें किसी तरह दूर जाना है. और दूसरी बहुत अच्छी बात डॉक्टर अंजलि ने कही, वो ये है कि जो आपके इनफैक्ट मैं बहुत सालों से बड़े सारे अपने दोस्तों, इनर सर्कल के दोस्तों से शेयर करता आया हूँ, और मैं आज आपसे भी, क्योंकि आप मेरा सर्कल है, मेरी कम्युनिटी है, वो शेयर करूंगा कि जब भी विपदा आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपके जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, जैसे आपके पास 2 कार हैं जिसके EMI जा रहे हैं, आपने एक छोटी मोटरसाइकिल थी, अब बड़ी वाली खरीद ली है क्योंकि आपको उसका शौक था, लेकिन उसका EMI पे करना अब दिक्कत है. सबसे पहले उसे डिस्पोज करिए. उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई किसी को तकलीफ नहीं है कि कोई एक्टर बस से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है, इसमें कभी भी मत शर्माइए. हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अपने चारों तरफ एक
एक अपनी इमेज बनाकर रखते हैं, है ना, और उस इमेज को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं कि अरे मैं तो कार से आता था, मेरा एक बॉय आइस बॉक्स निकाल के लाता था, तब मैं शूटिंग, भूल जाइए उसे। अब आप भी वही हैं, आप भी, आपको भी जो घर में काम करते हैं, आप भी बर्तन मांज रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, अपने अपने उस स्तर पर जरूर आ जाइए। कुछ कुछ सवाल हैं जो मैं इमीडिएटली पूछूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल विजय मोटवानी जी का है, जो अमित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आंसर करें। आपने एक्चुअली इसे आंसर कर दिया है, लेकिन विजय मोटवानी जी का कहना है कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं कि फ्यूचर कैसा होगा और मुझे किस तरह का काम मिलेगा और कब मिलेगा। इस तरह का एक और सवाल मुकुल नाग जी भी पूछ रहे हैं, तो मैं ये सवाल भी आप साथ में ही ले लेता हूं कि कब तक शूटिंग शुरू होने वाली है, क्या स्थिति है, और अगर होगी तो एक्टर्स की सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा। मुकुल भाई हमारे सीनियर हैं और विजय मोटवानी जी को मैं जानता नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि हमारे मेंबर हैं। दो बातें, एक तो ये कि सेट को 100% फूल प्रूफ तो हम हॉस्पिटल्स को भी नहीं कर पाए। अगर जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो पीपीई किट्स पहन के पूरा सैनिटाइज होके भी रहते हैं, दे आर स्टिल विक्टिम। जैसे डॉक्टर अंजलि कह रही है, उनके बहुत से फ्रंटलाइन कोलीग्स हैं, हमारे भी कोलीग्स, मेरे बैचमेट्स हैं, तो दे आर फ्रंटलाइन पीपल और दे हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड। रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो दो चीजें हैं, या तो हम भूखमरी से मरे या कोविड से मरे, है ना, मतलब आई एम बीइंग वेरी ब्लंट। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई चलो जिंदगी तो जीनी है, काम भी करना है, माइंड भी ऑक्यूपाई होना है, लेट्स बी स्लाइटली केयरफुल। एक्टरों का क्या, एक दो तीन नॉर्म्स डिस्कस हुए, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ सजेशंस आए थे कि मेकअप के लिए इतना डिस्टेंसिंग होगा, ये सैनिटाइजेशन, ये होगा। कुछ जगहों पर हमने अपने तर्क दिए, उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स थे, बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड। मेडिक्लेम कैसा होगा, ग्रुप इंश्योरेंस कैसा होगा, एम्बुलेंस ऑन सेट होगा, डॉक्टर ऑन सेट होगा, क्या होगा, किस तरह का सैनिटाइज प्रोसेस होगा, क्लोज डोर होगा, क्या लोग सेट पर ही रहेंगे या कुछ लोगों को घर आना जाना होगा, बिकॉज सेट सारे नायगांव में है, मीरा रोड में है, वसई में है, कुछ फिल्म सिटी में है। तो ये अभी डिस्कशन हो रहा है, एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम दोज कंट्रीज जहां पर काम शुरू हो गया है। जैसे स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में काम शुरू हो गया है, वहां गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है। टर्की में काम शुरू हो गया है। यूएस में, विच इज ऑल्सो अ बिग इंडस्ट्री लाइक अस, यूएस, साउथ अफ्रीका, यूके, इनके क्या नॉर्म्स, ये लोग क्या नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ऑल्सो गिवन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका जैसा तो है नहीं। ओके, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशंस को लेके हम सबको कैसे सुरक्षित रखें, इसके ऊपर एक विचार विमर्श चल रहा है। एंड जब तक, जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट साइन नहीं हो जाता जिसमें सारे स्टेक होल्डर साइन करते हैं, ओके दिस इज करेक्ट, नाउ वी कैन मूव, कीपिंग मिनिमल रिस्क, तब तक कोई नहीं जाएगा। बिकॉज इवन द प्रोड्यूसर्स एंड द ब्रॉडकास्टर्स डोंट वांट अ कैजुअलिटी ऑन देयर सेट्स, बिकॉज इट इज ऐसी समस्या इस टाइम पे। अब हम बता रहे कि जैसे डिज्नी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है, उनका तो वर्ल्ड वाइड धंधा ही बंद हो गया है, बिकॉज अम्यूजमेंट पार्क्स बंद है, उनके थिएटर्स बंद है, उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद है। तो जब एक एंटरटेनमेंट, तो नाउ बट एंड स्टार डिज्नी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेकहोल्डर्स इन इंडिया। तो धीरे धीरे जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एंकर बेस्ड शूट, 2-3 कैरेक्टर वाली शूट, ये आप जुलाई से शुरू करेंगे। कुछ स्मॉल लेवल की एड फिल्म शुरू हो जाएंगी, और जैसे डॉक्टर अंजलि ने कहा कि कुछ न्यू नॉर्मल्स बन रहे हैं, कुछ अजीब से न्यू नॉर्मल्स बन रहे हैं। हाँ अमित, उसमें मैं ये इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, कुछ साल पहले तक हम ये इमेजिन नहीं करते थे कि हम घर बैठकर डबिंग करके भेज देंगे। अब हमारे पास फोन आने लगे हैं, अरे सर वो जरा एक सीन है, जरा डब करके अपने फोन पर भेज दीजिए। ठीक है, बहुत सारे कॉल आने लगे हैं, सर आपका एक क्लोज रह गया था, व्हाइट वॉल के अगेंस्ट पेंटिंग का रेफरेंस करके शूट करके भेज दीजिए। तो वो नए नॉर्मल हैं, जो इसके बाद नए नॉर्मल आएंगे। डॉक्टर अंजलि, अगला सवाल आपके लिए है, और ये सवाल टेलीविजन पर बहुत पूछा जा रहा है और जगह जगह पूछा जा रहा है कि अब बरसात शुरू होने वाली है और बहुत भय है लोगों को कि इसकी वजह से शायद द स्प्रेड ऑफ COVID-19 might be, coronavirus might be more, and what will happen, what should we do in these circumstances? Right, देखिए, we have to take care of ourselves, okay? तो अभी हम देख रहे हैं कि इतने महीनों से बहुत से लोग घर में खाना खा रहे हैं, घर में खाना पका रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं,
ओके तो हमको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है. यस, बारिश में जो प्रिकॉशंस होते हैं, मच्छरों के प्रिकॉशंस होते हैं या फ्लड्स के प्रिकॉशंस होते हैं, उसका भी सोचना है. ओके कि अगर हमारे घर में फ्लड्स आ सकते हैं तो हाउ आर वी गोइंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट. ओके सो इस अगर हम ये सब प्रिकॉशंस लेंगे, यू नो ऑफ कोर्स बीमारियां बढ़ेंगी, बट बीमारी जब आती है स्पेशली कोविड के केस में, उससे डरना नहीं है. देखिए प्रॉब्लम कब हो रहा है कि लोग डिनायल में जा रहे हैं, नहीं 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 थोड़ा सा बुखार है, कल मैंने ठंडा खाया था इसलिए मेरा गला खराब हो रहा है. ओके म्युनिसिपैलिटी आके एक ठप्पा मार के जाएगी बाहर पे, मेरे नेबर्स मेरे से बात नहीं करेंगे. अरे आप लोग ने कोई क्राइम नहीं किया है, ये बीमारी मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, वायरस है, फ्लू है. ओके तो इससे डरना नहीं है. और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात करिए. प्लीज अपने आप कोई दवाई मत खाइए. जो हम सुन रहे हैं, कोई HCQ खा रहा है, कोई ये ले रहा है, प्लीज मत करिए वो. ओके जो हमारे गवर्नमेंट में लाइंस बना के रखे हैं 1916 है, उनसे बात करिए एंड गेट द हेल्प. ओके बिल्कुल बिल्कुल. यू नो बहुत सही अगर बात आप है. अपने नजदीक के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, यू विल गेट द हेल्प. डोंट गेट स्केर्ड क्योंकि 85% ऑफ पीपल आर कमिंग बैक होम, इंक्लूडिंग कल मुझे एक 93-year-old के डॉटर का फोन आया था. बोलती है मेरी मदर उधर इतना हल्ला मचा रही है कि मैं ठीक हूँ, मुझे आप लोग ने इधर क्यों पकड़ के रखा है. यू नो और उससे घर बैठ के कोविड हो गया, बेचारी 3 महीने से निकली नहीं है बाहर. यू नो सो वी हैव टू बी रिलैक्स्ड, calm, and we have to do our best. तो उसमें डॉक्टर, आई एम जस्ट पुटिंग इन अ पॉइंट व्हिच, सो आई हैव अ टीम ऑफ अबाउट 15 पीपल. तो वो भी काफी तितर बितर हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हाउ विल वी हैंडल दिस सिचुएशन. तो मैंने उनसे सीधी सी बात कही. मैंने कहा अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप घर से बाहर निकलते फिसलते और आपका पैर Right. टूट जाता, तो 6 हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन में होते, अपने घर में होते. ये वही बिल्कुल. सिचुएशन है. अगर हम उस Right. सिचुएशन को उस नजरिए से देखने लगे कि हमें कुछ हो गया है कि हम नहीं निकल हम्म. सकते घर से, और अब घर पर बैठकर हम किस तरह से कुछ पॉजिटिव परसूट्स कर सके. हम सब एक्टर हैं, हम सब क्रिएटिव लोग हैं, हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कहानियां बना सकते हैं. हमारे पास आज यूट्यूब जैसा साधन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है. क्यों ना हम इस पे वीडियोस बनाएं. कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक है, कुछ लोगों को अपने प्लांट संभालने का शौक है. आई थिंक दीज आर गुड वेज टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, isn't it, doctor? I would like to add one thing here is do something new every day. Right. Okay, एक चीज आप नहीं करिए जो आपने इतने सालों में नहीं की है. Just try it. आप गाना नहीं गाते कोई बात नहीं, एक गाना गा लीजिए, डांस करिए. यू नो घर बैठ के हम इतने सारे डांसेस सीख सकते हैं. यू नो जो लोग जिम जाते थे, मैं पहले सोचती थी कि इसके बगैर क्या होगा, मगर अभी तो आपके YouTube पे रोज कोई अफ्रीका से आपको डांस सिखा रहा है, कोई लैटिन अमेरिका से सिखा रहा है. You can do so many new things. बहुत बढ़िया. Absolutely. Thank you so much. Karuna, yes, please. To sum it up, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर अंजलि ने जो कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, इसका डेथ रेट बहुत कम है. प्रिकॉशंस अपनी जारी रखिए, पॉजिटिव रखिए, और अपनी कोई ना कोई पॉजिटिव एक्टिविटी आप इनकलकेट कीजिए, अपने आप को क्रिएटिवली बिजी रखिए. उसके अलावा अमित का कहना जो उनका टेक अवे आज का है, स्पेशली फॉर माय आर्टिस्ट कम्युनिटी, आई वांट टू टेल देम कि बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब अमित ने खुद ब खुद दे दिया कि प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उनको बोल दिया गया है, पूरी कोशिश जारी है, और अगर काम शुरू होता है तो पहले की तरह 60-90 डेज की टाइम लिमिट के बारे में भी विचार किया जा रहा है कि उसको शॉर्ट किया जाए, ताकि लोगों को जो बेरोजगार हैं काफी टाइम से, वी आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच व्हेन इट ऑल लिफ्ट्स अप, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हर किसी को फाइनेंशियली उसी वक्त टाइमली हेल्प मिल पाए इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम वेट. एंड पूरे प्रिकॉशंस के साथ और पूरे मेजर्स के साथ शूट को दोबारा से शुरू किया जाएगा. या गौतम करुणा, एक चीज और जो मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, what Amit is doing, what Payal is doing, what you are doing, what Dr. Anjali is doing is exactly what we all can do as individuals. मेरे आस पड़ोस में 10 मेरे जो एक्टर फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं या फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त, why don't I just reach out to them? आज हमारे पास जूम की सुविधा है, आज हमारे पास व्हाट्सएप की सुविधा है. जो बात अमित ने कही, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोगों ने अपनी they have committed suicide, they have played with their lives. That one little call would have made such a big difference. So just connect with your friends, just talk to them. You don't know that little. Yeah, doctor, you wanted to say something. हाँ,
You are unmuted. There's one more thing. Yeah, there's one more thing I want to say. देखिए मेरे इतने सारे फ्रेंड्स ने हेल्पलाइन शुरू की है काउंसलिंग की, फ्री काउंसलिंग मिल रहा है. जो चीज आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, प्लीज पिक अप द फोन. अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो, बोलते देखो आपको डिप्रेशन के लक्षण है, थोड़ी सी दवाई खा लीजिए, प्लीज टेक इट, क्योंकि डेथ इज नेवर द आंसर. हर चीज में हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं. Doctor, So we would please love to don't have the give up. numbers of those counselors if we can. I'll also send it to you. I'll send it to you. You can share it. बहुत Please. सी काउंसलिंग Thank you. हेल्पलाइन शुरू हो Thank you. चुकी है. Thank you so much. So Karuna, I think we can wrap up with this Yes. this lovely session we've had with all of you. Karuna, please, over to you. ओके देन मैंने अपनी तरफ से आपको सारे टेकअवेज आज के बता दिए हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को. हम अपनी तरफ से जाते जाते सिर्फ यही बात कहेंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, अबव ऑल स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव. प्लीज बी फील मोटिवेटेड. आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं. सिंटा एक ऐसा एसोसिएशन नहीं है जिसने ठेका उठाया है हम सबका. हम सबको ऑन एन इंडिविजुअल फ्रंट, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है. वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर ईच अदर. अपने फोन्स ऑन रखिए. किसी को भी किसी भी किस्म की मदद चाहिए, प्लीज रीच आउट, एंड वी शुड आल्सो फील फ्री टू रीच आउट टू पीपल. Bilkul. Thank you very Thank much, you to Karuna. all the Thank you, Dr. panelists. Anjali. Thank you, Dr. Anjali. Thank you so much. Thank you all of you. Thank Thank you so Payal. much. Thank you, Dr. Anjali. Thank you. Thank you so much, guys. And before we wrap up, before you leave, this was just the first session in a series of sessions which we'd like to do. Yeah. We would really appreciate your suggestions. अगर कोई आप बात हमारे साथ करना चाहते हैं, सिंटा के साथ करना चाहते हैं, प्लीज अपने सजेशंस हमें फेसबुक पर भेजें और हम उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे. Thank you. Thank you. Thank you, Gautam, for this Thank you. initiative. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you, Nice thank you meeting to all of you. Bye bye. Thank you to Yes.